Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Uh, Dear students, this lesson is for the students of class 10th. Subject is English and the topic is The Merchant of Venice. So basically this story is based on Shakespeare's famous play, The Merchant of Venice. It's a story of two friends named Antonio and Bassanio. Bassanio has borrowed some money from Antonio. So Bassanio needs this money to win the hand of his beloved named Portia. But Antonio has given this money to Bassanio by borrowing it from Shylock. Shylock is a rich and crafty Jew. Antonio has promised to pay back the money in 3 months. He signs a pledge that in case he failed to pay back the money, Shylock would be entitled to a pound of flesh taken from any part near Antonio's heart. Antonio is unable to pay back Shylock's money by the fixed date, and the Jew brings a case against him in the Duke's court. In the court, Portia appears as a legal expert. She is able to save Antonio's life in a very intelligent manner. प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है ये शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस से माखूज है। ये एंटोनियो और बेसानियो नाम के दोस्तों की कहानी है। बेसानियो ने एंटोनियो से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। बेसानियो को इन पैसों की अपनी महबूबा पोर्शिया से शादी करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन एंटोनियो ने ये पैसे बेसानियो को शैलाक नाम के एक अमीर और फरेबी यहूदी से उधार लेकर दिए हुए हैं। अब एंटोनियो ने 3 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया होता है। वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता है कि अगर वो पैसे लौटाने में नाकाम रहेगा तो शैलाक को एंटोनियो के दिल के नज़दीक के किसी भी हिस्से के 1 पाउंड गोश्त लेने का हक होगा। एंटोनियो मुकर्ररा दिन तक पैसे लौटाने में नाकाम रहता है। यहूदी इसके खिलाफ ड्यूक की अदालत में मुकदमा ले आता है। अब अदालत में पोर्शिया भेस बदलकर एक कानूनी माहिर के रूप में जाहिर होती है। वो बहुत होशियारी से एंटोनियो की जिंदगी बचाने में कामयाब रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन। नाउ वी विल रीड दिस लेसन paragraph wise. So let's open your textbooks on the page number 55 and we will start. Shylock the Jew lived in Venice. A usurer by profession, had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice. And Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and generous merchant Antonio. Whenever these two met on the Rialto exchange, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. Dear students, Shylock एक यहूदी वेनिस में रहा करता था। पेशे से एक सूदखोर था। इस आदमी ने ईसाई व्यापारियों को बहुत भारी सूद पर पैसे उधार दे देकर बहुत दौलत इकट्ठी कर ली थी। एक बहुत सख्त दिल का आदमी होने की वजह से जो पैसे उसने उधार दिया होता था उसकी वसूली वो इतनी शिद्दत से करता था कि सभी अच्छे लोग इससे नफरत किया करते थे। खास तौर पर एंटोनियो, जो वेनिस का एक नौजवान व्यापारी था,
उससे शदीद नफरत करता था और शाइलॉक भी एंटोनियो से उतनी ही नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो तकलीफ ज़्यादा लोगों को पैसे उधार दिया करता था और वो उस पैसे के लिए कभी कोई सूद वसूल नहीं करता था जो वो उधार दिया करता था। इसलिए लालची यहूदी और सखी व्यापारी एंटोनियो के बीच बड़ी दुश्मनी रहती थी। जब कभी एंटोनियो रियाल्तो बाजार में शाइलॉक से मिलता तो वो इसकी सख्त दिली पर मबनी खुद सूदखोरी के कारोबार के लिए इसकी मुखालफत किया करता था। वो यहूदी इन सब बातों को ज़ाहिरन सब्र से सह जाया करता था, जबकि वो दिल ही दिल में बदला लेने का मंसूबा बनाता रहता था। एंटोनियो का नौजवान दोस्त बेसेनियो पोर्शिया नाम की एक दौलतमंद और खूबसूरत खातून से प्यार करता था, जो कि बेलमोंट नगर में रहती थी। वो इसके आगे अपने प्यार की पेशकश करने के लिए बेलमोंट जाना चाहता था, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था जिसकी उसे ज़रूरत थी खुद को इसके दूसरे जोड़ों की जितना ही दौलत मंद और अहम दिखाने के लिए। इसलिए वो एंटोनियो के पास गया और उससे कहा कि वो इसे 3000 ड्यूकेट्स जो है यूरोप का एक कदीम सोने का सिक्का की रकम उधार दे। एंटोनियो had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all his money in trade. His ships carrying rich cargoes had gone abroad and they would take some time to get back to the port of Venice. But being very eager to provide his friend with the money he needed, he decided to borrow the sum from an old Jew called Shylock. इस वक्त एंटोनियो के पास बेसानियो को देने के लिए कोई नकद पैसा नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगाया हुआ था। माल से लदे उसके जहाज गैर ममालिक में गए हुए थे और इन्हें वेनिस की बंदरगाह तक वापस आने में अभी कुछ वक्त लगना था, लेकिन अपने दोस्त को जरूरी पैसा जुटाने के लिए बहुत बेताब होने की वजह से उसने शाइलॉक नाम के एक बूढ़े यहूदी से वो रकम उधार लेने का फैसला किया। Antonio and Bassanio went together to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. एंटोनियो और बेसानियो इकट्ठे मिलकर शाइलॉक के पास गए और एंटोनियो ने यहूदी से कहा कि वो उसे मन चाहे सूद की किसी भी शरह पर 3000 ड्यूकेट्स उधार दे दे, जिसकी अदायगी समंदर में गए उसके जहाजों में भरे माल में से कर दी जाएगी। On this, Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I will feed fat the ancient grudge I bear him. He hates our Jewish nation, he lends out money gratis, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. Cursed be my tribe if I forgive him. इस पर शाइलॉक अपने मन ही मन में सोचने लगा, अगर एक बार मेरा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ जाए तो मैं इसे अपनी पुरानी भड़ास निकाल ही लूंगा। वो हमारी यहूदी कौम से नफरत करता है, वो बिना सूद के ही पैसे उधार देता रहता है और व्यापारियों के बीच वो मुझ पर और मेरी गाड़ी कमाई पर कीचड़ उछालता रहता है। मेरी कौम पर लानत होगी अगर मैं उसे फिर भी माफ कर दूं। Antonio, finding he was musing within himself and did not answer, and being impatient for the money, said Shylock to Hugh, "Do you hear? Will you lend the money?" ये देखते हुए कि वो शाइलॉक अपने ख्यालों में खो गया, कुछ जवाब नहीं दिया था और पैसे के लिए बहुत बेताब होते हुए एंटोनियो ने कहा, शाइलॉक, क्या तुम सुन रहे हो? क्या तुम पैसा उधार दोगे? To this question the Jew replied, Signor Antonio, on the Rialto, many a time and often you have railed at me about monies and my usuries, and I have borne it with a patient shrug, for suffrage as is the badge of all our tribe. And then you have called me unbeliever, cut-throat dog, and spit on my Jewish garments, and spurned at me with your foot as if I was a cur. Well then, it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. He was a dog. Has a dog money? Is it possible a cur should lend 3000 ducats? Shall I bend low and say, Fair sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you call me a dog.
and for these courtesies I am to lend you monies. अब इस सवाल पर इस यहूदी ने जवाब दिया, मेरे मोहतरम एंटोनियो, तुमने कई बार और अक्सर रियालतो बाजार में मेरे पैसे और मेरी सूदखोरियों की मुखालफत की है, और वो सब कंधे अचकाते हुए बेपरवाह होकर सब्र से सहता रहा, क्योंकि बर्दाश्त हमारी सारी कौम की निशानी है। और फिर तुमने मुझे एक काफिर और जलील कुत्ता कहा है, और तुमने मेरी यहूदी पोशाक पर थूका है, और नफरत से मेरे ऊपर अपना पांव इस तरह उठाया है जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। और अब जाहिर हो रहा है तुम्हें जैसे मेरी मदद की जरूरत आ पड़ी है, और तुम मेरे पास आए हो और कहते हो, शैलॉक मुझे पैसे उधार दे दो। क्या कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि कोई कुत्ता 3000 ड्यूकेट्स उधार दे सके? क्या मैं तुम्हारे सामने झुक कर कहूँ, मेरे प्यारे मोहतरम, आपने पिछले बुध के दिन मेरे ऊपर थूका था, एक दूसरी बार आपने मुझे कुत्ता कहा था, और इन मेहरबानियों के बदले मुझे आपको पैसा उधार देना चाहिए। Dear students, that's all for today. We will continue this lesson in the next video lesson. Till then, stay home, stay safe.